Hello students, today we'll discuss about the third part of the electric field. Electric field, the basic formula E is equal to F upon Q, and the next is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, that means due to the point charge. Now we discuss about the electric field due to a dipole at axial point as well as equatorial point. Point charges, that means Q1 and Q2 both are equal but in opposite sign, then you can take the Q and 5 microcoulomb. This can be changed 5 into 10 power minus 6 coulomb. And next is that a part, that means 2A that means dipole length 4 centimeter, you can convert the 4 centimeter into 10 power minus 2 meter, and the axial point, that is point P, situated from the midpoint of the dipole from 4 centimeter, that means R equal to 4 centimeter also be converted to 4 into 10 power minus 2 meter. Now the axial point formula is what? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2pr upon r square minus a square whole square. Now you can put the value of 1 upon 4 pi epsilon naught also written as, now you can change the 2a q r upon r square minus a square whole square. Now put the value of the each terms, that means 9 into 10 power 9, 2 into 2a, that means 4 into 10 power minus 2, and q value 5 into 10 power minus 6, and r is that 4 into 10 power minus 2. Now here also r square, that means 4 into 10 power minus 2 whole square, and in a bracket a means that half 2 into 10 power minus 2 whole square or whole power 2. You can simply simplify that the number as well as the 9 into 2 into 4 into 4 into 5 into 2, 6, 10, 10 into 10 power minus 1, 10, 6, 6 to 8, 8 to 10, 9, 10 power minus 10, that means 10 power minus 1, and here 16 into 10 power minus 4 common, and here minus 4 into 10 power minus 4. So 16 minus 4, 10 power minus 4 whole power 2. Now we can write here 9 into 2 into 4 into 4 into 5 into 10 power minus 1 upon 12, 12 ja 144. Why? Because 12 into 10 power minus 4 after then is square, so 9 into 2 into 4 into 4 into 5 into 10 power minus 1, and 12, 12 ja 144 into 10 power minus 8. Okay, 10 power minus 8. तो you can solve this from value, तो पे मिलेगा आपको 144 और 0 इंटू 10 पावर माइनस 1 अपॉन 144 इंटू 10 पावर माइनस 8. तो ये 0 से कैंसिल, 4 से 144 कैंसिल, 10 पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा, 10 पावर 8 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द फाइनल आंसर. तो वेरी सिंपल, वेरी इजी. आंसर 8. न इधर की बात न उधर की बात, सीधे पढ़ाई की बात. ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको बस कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, और न यहाँ पे कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट या कोई सी बातें. दैट गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं 10. तो 2a इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 10 सेंटीमीटर. इसको बदल लीजिए 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, दैट मीन्स 10 पावर माइनस 1 मीटर हो गया. ठीक है, चार्ज आपका दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम मीन्स Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम. इसको बदल लीजिए 10 पावर माइनस 6 कूलम. आफ्टर देन
फिर कह रहा है कि 0.12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स आर दिया है ना। ये है आपका, ये है और ये है, ठीक। आर दिया हुआ है तो आर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻² मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इक्वेटोरियल के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, E = 1/4π0 P होगा, है ना। एक्सियल के लिए 2P, इसके लिए P होगा। R² + A² 3/2, इसको बदल देंगे तो 1/4π0 2AQ अपॉन R² + A² 3/2। वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखेंगे आपको क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू 2A की वैल्यू क्या है 10⁻−1 है, और Q की वैल्यू क्या है 10⁻6 है। और डिनोमिनेटर में आप करेंगे तो R की वैल्यू क्या हो गई 12 होगा, 12 × 10⁻², ओके, यहाँ स्क्वायर और फिर प्लस इस 1/2 मीन 0.5 × 10⁻1, तो 5 × 10⁻² स्क्वायर 3/2। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 9 × 10⁻7 10⁻2, और यहाँ पर हो जाएगा 144 25 169 × 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 3/2, तो 900 अपॉन इसको करेंगे तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 × 10⁻² का होल क्यूब, इसको ले जाएंगे ऊपर तो इसको 9, एक इसका 0 दे देंगे, 6 होगा तो इसको 0 दे देंगे, 9 10⁻5 कर लीजिए अपॉन 13 13 13 21 97, और ये 10⁻6 ऊपर गया, एक इसको 0 दे दिया, डिवाइड करेंगे 0.096 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये हो गया, ठीक है। गिवन दैट 10 माइक्रो कूलम को बदल दीजिए तो 10⁻5 माइक्रो कूलम से कूलम, क्योंकि 10⁻6 से कम हो जाएगा, कूलम हो गया। आर प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक। अब आप इससे समझ सकते हैं मिलीमीटर मतलब ये शॉर्ट डाइपोल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहा है, तो 2A = आपको दे रहा है 5 मिलीमीटर, इसको बदल लीजिए मीटर में, 5 × 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको A निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए, और B निकालना है इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। ये जबकि आपको R दे रहे हैं मैं दोनों के लिए 15 सेंटीमीटर, अब देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर है, और ये इसका क्या है मिलीमीटर है, तो शॉर्ट डाइपोल इससे आप पहचानेंगे, तो 15 × 10⁻² मीटर। तो आइए ए एक्सियल के लिए क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा 2, तो यहाँ आप लिख दीजिए 1/4π0 2P/r³, सिंपल सा, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए 9 × 10⁻9 इंटू 2, अब 2A क्या हमारे पास है 5 × 10⁻3, और Q क्या है हमारे पास है 10⁻5 अपॉन r³, R हमारे पास है 15 × 10⁻² का होल क्यूब। तो आप इसको 9 × 2 × 5, अब इसको देखो 8 10 हो गया, 10 बचेगा है, यहाँ पे 15 × 15 3 टाइम्स, और 10⁻6 हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 3 3 9 3 5 15, फिर 3 3 9 3 5 15, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 5 से इसको कर दिया 2 हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया 2 2 4 अपॉन 15, ये ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, तो आप इसको 40 × 15 कर लीजिए और 10⁻5 कर लीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए, 15 2 30 पॉइंट, फिर बचता है 10 6 फिर 15 6 ऐसे होते जाएगा, और इसके बाद न्यूटन पर कूलम, ये हो गया आपका एक्सियल के लिए। अब आप इक्वेटोरियल के लिए कर लीजिए B
बी इक्वेटोरियल। तो आप सीधा समझ सकते हैं, सेम सब कुछ प्रोसेस वही है और फार्मूला वही रहेगा। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी अपॉन आर क्यू। तो देख रहे हैं यहाँ से 2 नहीं है, बस 2 से डिवाइड इसमें कर दीजिए, इसी का आंसर हो जाए कौन वैल्यू, क्योंकि वैल्यू सबका क्या है, सेम है। तो वैल्यू कौन पुट करने जाए, आप केवल इस वैल्यू को क्या करें, 2.66 इंटू 10⁵/3 डिवाइड अपॉन 2, है ना, 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 जा 3 जा 3 जा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि आउटवर्ड, है ना, ये आपका प्लस क्यू हो गया, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। ऐसे बी कह रहा है Q इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव चार्ज के लिए करिए। निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड, ठीक। सी जो कह रहे हैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो डाइपोल के लिए कह रहे हैं या अपोजिट चार्ज के लिए। तो एक प्लस क्यू बनाइए, है ना, और एक माइनस क्यू हो गया। अभी आपने देखा प्लस के लिए क्या होगा, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड आउटवर्ड, ये। अब ऐसे ये, तो आपको लगेगा जैसे ये मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, ये आउटवर्ड ऐसे जा रहा है आउटवर्ड, ठीक है। अब निगेटिव के लिए क्या था, इनवर्ड, क्या होगा, इनवर्ड, ये इनवर्ड, ठीक है। तो इसके लिए ये, तो ये आपका किसके लिए हो गया, या तो डाइपोल के लिए कह सकते हैं या ये। तो इसका शेप क्या होगा, वीवो टाइप का शेप हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने आपको जो एक सिंपल फार्मूला होता है उसके बेस पे, फिर उसके आगे फिर एक पॉइंट चार्ज, फिर डाइपोल के कारण, फिर शार्ट डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम जो होता है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद ही हम नए सीरीज को चालू करेंगे। थैंक्स।